And what a perfect day to be sharing this with all of you because it's Warriors Day today. It's a celebration of this warrior spirit, this warrior lens. It's not so much about waste. हम शायद वेस्ट की ज़्यादा उतनी बातें नहीं करेंगे आज, पर हम लोगों के बारे में उनका कैसे नज़रिया बदला है वेस्ट को लेकर या और बाकी चीज़ों को लेकर उस पर बात करेंगे। तो आप सबका स्वागत है अजनबी से अपने तक में। आज हमारे जो स्पीकर्स हैं और आप सब एक समय तक अजनबी थे, बट टुडे इज एन अटेम्प्ट टू मेक यू मीट वॉरियर्स, ताकि ये जो अजनबी से अपने तक का सफ़र है ये हम सब साझा कर सके। हम पिछले 13 साल से लगभग इस वॉरियर स्पिरिट को, इस जुनून को, इस पैशन को बाकी लोगों में इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको जो दिख रही है ये एक जर्नी होती है जब हम किसी का माइंडसेट शिफ्ट करते हैं ना। शायद कोई पहले मना करता है कि यार वेस्ट तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर कोई कहता है यार वेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आई डोंट वांट टू केयर अबाउट इट। तो वहां से लेकर अब जब लोगों के जहन में ये बात घुस गई है कि हाँ यार दिस इज अ प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये वाली जो जर्नी है ये आज के हमारे स्पीकर्स ने लिव थ्रू करी है और वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। एंड आपके पास भी मौका रहेगा कि आप इस जर्नी को हमारे साथ साझा करें, शेयर करें। नाउ वुड बी अ गुड टाइम कि हम चैट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, हमारा नाम, हमने कहाँ से ज्वाइन किया है, किस शहर से या किस गांव से, और कोई एक छोटा सा ऐसा इंस्टेंस जहाँ पर आपका वेस्ट के प्रति कुछ पर्सपेक्टिव बदला हो, कुछ नज़रिया बदला हो। सो एंड वी हैव सम कपल ऑफ मिनट्स, तो अगर किसी को अनम्यूट करके भी शेयर करना है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। Okay, so we have somebody from Guwahati, wow, Hyderabad, Dehradun, Noida, Delhi, wow, we have people from all over India, गुड़गांव, मुंबई, बैंगलोर, वाओ। किसी को अनम्यूट करके भी शेयर करना है अपना कुछ कहानी, वो भी कर सकते हैं। बैंगलोर, वाओ। So do you want me to start? Sorry. I'm Vijaya here. Yeah, hi. Hi, would you like me to start? Sure, sure. So actually, I'm from Sikandrabad, and my daughter's friend Meghna actually introduced me to this. And can you hear me? Yes, yes, yes. Meghna introduced you, your daughter's friend. Yeah. So we've been living here for a number of years, observing the various changes that are happening, and we are actually trying to make our best effort to keep our colony at least clean by at least speaking up, sharing the message on WhatsApp groups, and asking people to, be more attentive about their surroundings. And we have been proactively doing it in our apartment complex. And one of the things is when I go to a store or any grocery, I make sure I take cloth bags with me. And when I do see somebody who is actually carrying a plastic bags, I tell them, even if I don't know who they are, I tell them in a gentle manner that they should get their own bags rather than demand plastic bags. So that's one thing that we have been doing from a young age. In fact, my two daughters are also similar thinking. And of course, both are grown up now, but we like to make these small changes wherever we are. And recently, one of my friends from the US, basically, I'm from a science background. So my friend in the US who came over, each time he visits Hyderabad, he actually has a small initiative among schools where he volunteers and goes around spreading the message about people to pick up garbage from outside the schools and put it. Great. Thank you, Vijaya ji. Yeah. Ashwin? Yeah, Yeah, we're going to do a quick round of intros. Yeah. I'm from Noida. Of course, I've been knowing personally, बहुत काम देखा हुआ है मैंने, लेकिन मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। मेरी बेटी गई ट्रियूंड के ट्रैक पे, एंड मैंने कहा था धर्मशाला होते हुए जाओगे तो कहीं आपको वेस्ट वॉरियर्स नजर आएगा, जरूर जाना। एंड व्हेन शी केम बैक कहती है पापा ट्रियूंड के ट्रैक में हर जगह इतने वेस्ट वॉरियर्स के हमें बोर्ड्स नजर आए, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड वो अपने पूरे ट्रैक के ग्रुप में सबको बताते जाई कि यहाँ कूड़ा नहीं फेंकना, यहाँ नहीं करना। एंड उसके सारे ट्रैक के ग्रुप्स को भी पता चला
तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग को शायद अंदाजा भी नहीं है कि आप लोगों का काम कितने दूर तक लोग देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, तो उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने सारे दोस्तों को बताया। तो मैं सिर्फ आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो इतना काम कर रहे हैं, ये जो दिखता है आपको, वो सिर्फ एक 1% है जो दुनिया को दिख रहा है। प्लीज करते जाइए। आई एम माई सेल्फ वेरी इंस्पायर्ड। थैंक यू फॉर ऑल द पीपल हु आर डूइंग। कितना काम कर रहे हो हर जगह में, केम्प्टी में भी मैंने देखा। प्लीज कंटिन्यू डूइंग ऑल द वर्क यू आर डूइंग। थैंक यू थैंक यू सो अश्विन। मच। ये हम सब जो आज कॉल पे जुड़े हैं, ये सबका कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। सो थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल ऑफ आवर वर्क। ओके, तो आज हमारी एक एक्चुअली ये सेशन वेस्ट वॉरियर्स नहीं लीड कर रहा है, ये एक नॉन वेस्ट वॉरियर लीड कर रही है। हमारे साथ एक 10 साल की अभिन्या है। I will let her introduce herself. She's magnetic in her own way and हम आपको बोर नहीं करना चाहते थे अपनी बातों से, तो इसलिए हमने कहा कि आप में से ही किसी एक को बुला लेते हैं। सो अभिन्या, ओवर टू यू। Thank you, Kwaish. My name is Abhinya, and hi everyone. My name is Abhinya, and uh, I'm here to share a real life experience with you that I was in. So when I went to New York, मैंने बहुत सारे देखे वेस्ट देखा, और मेरे को समझ आया that ये बस इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये सब जगह होता है। मैं उठाने लग गई, और मेरे मम्मा ने बहुत डांट डांट किया दैट ये आप कैसे कर सकते हो। मैंने दो चीज़ें समझ आई इससे। एक, जो ये मैंने बोला है इंडिया का प्रॉब्लम है नहीं है, और सेकंड दैट ये जब आप क्लीन अप्स करते हो आपको हाइजीनिक करना है, आपको प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ करना है। इसलिए वेस्ट वॉरियर्स बहुत ही इंस्पायरिंग है मेरे लिए। और जब मैंने एक अवेयरनेस ड्राइव करी थी मेरे कॉन्डो में, ख्वाहिश और सूरज ने दोनों बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। थैंक यू। अब मैं पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करूँ। सूरज जी हिमाचल प्रदेश के सुरेश। सुरेश हिमाचल प्रदेश के एक कम्युनिटी लीडर है। उन्होंने 2 बार उप प्रधान और एक प्रधान के रूप में सेवा दी है। शिफाली आंटी के पास 30+ साल का बिजनेस एक्सपीरियंस है, और उन्होंने पेप्सिको और नोकिया जैसे कंपनीज में लीडरशिप रोल्स करे हैं। वो सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती हैं, और सोशल वेंचर पार्टनर्स इंडिया के थ्रू वेस्ट वॉरियर्स के काम को भी चैंपियन किया है, और अभी वो पब्लिक पॉलिसी स्टडी कर रही है। मुक्ता आंटी देहरादून से एक पर्यावरण सखी है। उन्होंने शादी से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में पॉलिटेक डिप्लोमा किया है, और अब वो 5 और सखियों के साथ मिलकर 5 पंचायत का वेस्ट मैनेज करती है। देहरादून के साथ साथ कॉर्बेट में भी 25 सखियां 12 पंचायतों की केयर कर रही हैं। राज अंकल एक बिजनेसमैन है, और पहले कबाड़ी वाले थे, और आज वो 3 टन कम MRF मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी चलाते हैं। आसान भाषा में कूड़े का फैक्ट्री। हाय राज अंकल, आप अभी कहाँ हो? हाय राज अंकल, आप अभी कहाँ हो? Are you there? ईशान, राज, आप हैं क्या? ओके, मे बी एक सेकेंड। Okay, maybe we can move to Mukta ji in the meanwhile, and we'll have to come back to Raj whenever he joins. We'll call him in the meanwhile. Yeah, sorry. Okay. मुक्ता आंटी,
मुक्ता आंटी पर्यावरण सखी मॉडल को चलाती हैं। वो डोर टू डोर जाती हैं और फिर वेस्ट लेती है और फिर सेग्रीगेट करती है एमआरएफ में। फिर वो आगे रिसाइकलर्स को बेचती है। मुक्ता आंटी, मैंने आपकी पर्यावरण सखी मॉडल की यूट्यूब वीडियोस देखी हैं। वो तो बहुत ही मजेदार है, थोड़ा ज्यादा ही मजेदार है। क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? थैंक यू। प्रॉब्लम तो बहुत होती है। स्टार्टिंग से मतलब नमस्कार, मेरा नाम मुक्ता पवार है, मैं ग्राम स्थल से आती हूँ और मैं एक पर्यावरण सखी हूँ। मेरी पर्यावरण सखी हम जो है कल्पना पर्यावरण सखी के उससे काम कर रहे हैं। हमारे समूह का नाम कल्पना पर्यावरण सखी समूह है। इस पर्यावरण सखी में काम करते हुए मुझे लगभग अब 2 वर्ष हो जाएंगे मई में। तो जिस तरह से अभी हम 9 पंचायतों में काम कर रहे हैं और अभी 6 पंचायतें हमारी और जुड़ेंगी और जिसमें हम 10 सखियाँ अब काम कर रही हैं। हम सभी सखियाँ अपना काम करती हैं, कलेक्शन करती हैं, ई-रिक्शा भी चलाती हैं और डोर टू डोर कलेक्शन करती है, कंपोस्टिंग खाद बनाते हैं, बीलिंग करते हैं, तो सारा काम हम खुद करते हैं। थैंक अ, थैंक यू मुक्ता आंटी। पर इफ आपको इतने प्रॉब्लम फेस होते हैं, आप ये क्यों करते हो? हाँ, प्रॉब्लम तो देखो, अगर हम कुछ भी काम करेंगे तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स तो आती ही आती है। जब मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूँगी, जब भी वेस्ट मैनेजमेंट हमारे यहाँ आया, तो इस काम करने के लिए मेरा मन था करने का, लेकिन मैं कहीं न कहीं इस काम करने को शायद एक झेप-सी या एक शर्म-सी थी कि हम कूड़े में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये मैं काम कैसे करूँगी? जब मैं ये काम मतलब करती थी स्टार्टिंग में, जब मैं जुट गई इस काम को करने के लिए, तो मैं अपना फेस ढक के ये काम करती थी कि मुझे लोग ना पहचाने कि मैं क्या काम कर रही हूँ। मैं अपना फेस ढक देती थी कि लोग ना पहचाने कि ये काम कर रही है या इनकी बहू इस काम में जुड़ गई है। तो कहीं न कहीं तो बहुत दिक्कतें आती थी और ये है कि काम करने के साथ-साथ, जैसे कि जब मैं इस गाँव में काम करने गई तो लोग मतलब बोलते थे, सामने तो बोलते थे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे कहीं न कहीं लोग हँसते भी थे कि देखो इनकी बहू इस काम में जुड़ गई है। तो लोगों ने काफ़ी मज़ाक भी बनाया हमारा कि ये इनको सिर्फ़ एक कूड़े का ही काम मिला है करने के लिए। तो इसलिए और प्रॉब्लम्स इतनी थी कि जो हम जितनी भी सखियाँ हैं, सबको कहीं न कहीं ये दिक्कतें हैं कि जब मौसम मतलब जब मौसम की बात करूँ मैं, गर्मियाँ आती हैं या बरसात आती है, तो मौसम गर्मियों में क्या होता है कि हम गाड़ी में खड़े होके काम करते हैं, तो इतनी तेज़ धूप होती है कि कभी भी, लेकिन हमें कलेक्शन करना ही होता है, हम अपना कलेक्शन नहीं छोड़ते हैं। चाहे बरसात हो, बारिश का कितना भी बारिश हो रही हो, तो हमें अपना कलेक्शन करना ही होता है। अगर हम एक दिन छोड़ देंगे, तो हमारे पास कॉल आने लग जाते हैं या मैसेज आने लग जाते हैं हमारे ग्रुप में कि आप वेस्ट लेने क्यों नहीं आए? तो हम वो कलेक्शन करते ही करते हैं। हाँ, अगर कुछ इमरजेंसी हो गई है गाड़ी के साथ तो हम वो नहीं कर पाते, वरना तो हमारा कलेक्शन होता ही होता है। जब बरसात के टाइम में कई बार ऐसा होता है कि जब बैग्स होते हैं लोग अंदर नहीं रखते, वो बाहर ही रखते हैं, वो गीला हो जाता है, तो कई बार उनमें कीड़े भी हो जाते हैं। तभी भी हमें वो बैग लेके ही जाना पड़ता है क्योंकि लोग उसे रखते हैं कि वेस्ट वाटर वाले आएँगे और उस कूड़े को लेके जाएँगे। तो मैं ये काम इसलिए भी करा कि कहीं न कहीं एक पर्यावरण से शायद जुड़ने का एक मौका मुझे मिला, कि इस पर्यावरण में जुड़ के कुछ करने का मौका मिला और साथियों के साथ मतलब जैसे कि मैं देखूँ कि बहुत सी सखियाँ ऐसी हैं या हम जो सखियाँ हैं, हमें कहीं न कहीं एक तरह से रोज़गार भी मिला है काम करके। तो हमारा जो रोज़गार का वो भी हुआ है, एक मुकाम भी हासिल हुआ है वेस्ट वॉरियर में जुड़ के। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ़ अपने ही गाँव तक एक पहचान थी मेरी, लेकिन जब मैं वेस्ट वॉरियर में जुड़ी तो मेरी एक पहचान बनी। मैं कहीं मतलब बहुत सी ऐसी जगह गई हूँ, मैंने आज से पहले कभी किसी मंच में नहीं बोला, लेकिन वेस्ट वॉरियर के थ्रू ही मैंने मंच में खड़े होके मैं बोली हूँ। तो ये मौका मुझे वेस्ट वॉरियर ने दिया। आज के टाइम पे मतलब मैं सबके सामने आराम से बोल पाती हूँ, पहले मुझे थोड़ा हिचक होती थी बोलने में। तो ये वेस्ट वॉरियर वालों ने ही मुझे एक तरह से पहचान दी है और जितने भी हम सारी सखियाँ हैं, तो आज इस टाइम पे हम सखियों को कोई ना मतलब हर कोई ना कोई जानता है कि ये वेस्ट वॉरियर में है और ये काम कर रही हैं। अ, तो ये एक तरह से पॉज़िटिव पॉइंट भी है, कहीं-कहीं नेगेटिव भी चीज़ें आती हैं, लोग हमें कूड़े वाली भी बोलते हैं कि देखो वो कूड़े वाली आ गई हैं या वो कूड़े का काम कर रही हैं। तो
हर जगह मतलब कुछ ऐसे देखा जाएगा तो कई जगह पॉजिटिव चीज भी है तो कई जगह नेगेटिव चीजें भी हैं। तो आज जो हम वेस्ट फॉरेन में जुड़ के ये काम कर रहे हैं तो एक पहचान जिसे बोलते हैं वो हमें मिली है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि मतलब अगर पर्यावरण में आने वाली मतलब ये अगर आप ये मुझे बोलेंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मैं बचपन मेरा मतलब जो मेरा जन्मभूमि जिसे बोलते हैं, मेरा उत्तराखंड देहरादून ही रहा है। तो जब मैं छोटी थी तो यहाँ पे वातावरण बहुत ही अच्छा था, बहुत हरियाली थी, लेकिन आज के टाइम पे यहाँ इतना ज़्यादा कूड़ा बढ़ चुका है। तो कहीं न कहीं अगर इसमें जुड़ के मैं अपने पर्यावरण के लिए या अपने समाज, अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं वो कर पा रही हूँ कि आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ी को कुछ मतलब अच्छी हवा, अच्छा पानी मिल सके। उन्हें गर्व हो कि हम उत्तराखंड में हमारा जन्म हुआ है, देवभूमि में हमारा जन्म हुआ है। तो ये भी एक रीज़न है कि आने वाले टाइम पे पीढ़ियों के लिए मैं एक स्वच्छ वातावरण अगर बना सकती हूँ। कहते हैं ना बूँद-बूँद से सागर भरता है, तो मैं तो सिर्फ़ एक बूँद बन के काम कर रही हूँ। सागर हमारा तभी बनेगा जब हम सब मिलके ये काम करेंगे। तो मेरी कोशिश यही है। और मुक्ता जी, इस प्रोजेक्ट में पंचायत ने क्या किया है आपको मदद करने में, और आपने क्या किया है पंचायत लेवल पे? हाँ, पंचायत तो जैसे हमारे गांव के प्रधान लोग होते हैं, हमारी टीम मेंबर, हमारे सर लोग उनके पास जाते हैं, उनसे टाइम मांगते हैं कि आप हमारे विजिट करें, तो वो हमारी हेल्प करते हैं। पंचायत से भी हमारी काफी हेल्प हुई है। पंचायती राज से जैसे कि हमें हमारा एमएलएफ सेंटर बना है, तो उसकी जो जमीन है वो हमें पंचायत राज से ही मिली है। हमारी जो मशीन लगी हुई है जिसमें हम कहते हैं बेलिंग वगैरह बनाते हैं, वो भी उन्होंने दी है। हमारा जो बिजली का बिल है वो भी अभी मतलब गवर्नमेंट ही पे करती है। तो देखा जाए तो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। जो गाँव के प्रधान होते हैं वो हमारे साथ जैसे ऑनबोर्डिंग घर-घर जोड़ना होता है, लोगों को समझाना होता है, तो जाते हैं। जो सीनियर सिटीज़न होते हैं हम उनको लेके जाते हैं, तो उनके साथ जाके तो वो हमें मतलब उनके साथ जाके हम जो वेस्ट नहीं देते हैं हम उनको समझाते हैं कि आप अपना वेस्ट दीजिए। तो इस तरह से पंचायती राज काफ़ी हेल्प करती है। जैसे कि थैंक अभी यू पर्यावरण। मुक्ता जी, हाँ आपकी जी। स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है मेरे जैसे यंग गर्ल्स के लिए। थैंक यू। एंड लाइकवाइज बीइंग अ वुमन बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रहा है मुक्ता जी की जर्नी देखना। और उनके साथ जो और 25 सखियां एक कॉर्बेट में है और 5 सखियां इधर देहरादून में है, हैट्स ऑफ टू देम कि वो ये काम कर रहे हैं रोज। um, और जैसे मुक्ता जी ने बताया कि पंचायत लेवल पर और गांव लेवल पर बहुत एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है जो पंचायत और हमारे प्रधान होते हैं। तो दैट टेक्स अस टू सुरेश ठाकुर जी। सुरेश ठाकुर लगभग पिछले 10-12 साल से बीड़ पंचायत में पोजीशंस ऑफ पावर होल्ड कर रहे हैं। और उन्होंने वहां पर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अब फंक्शनल हो गया है पिछले 3 से 4 सालों में, जबकि अभी वो प्रधान है भी नहीं, जो वो बताएंगे, उसके बावजूद उन्होंने वो सिस्टम सेट किया है। और आगे ये पूरे हिमाचल के लिए ये सिस्टम एक तरीके से मॉडल रहा है, क्योंकि आज की तारीख में लगभग 500 से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पीपल हु आर होल्डिंग गवर्नमेंट पोजीशंस, दे हैव विजिटेड बीड़, ताकि वहां का वो मॉडल देख सकें, उधर से सीख सकें। और ये एक मैंडेट है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से। तो सुरेश ठाकुर जी, ओवर टू यू। जरा बताएं आपको ये कैसा लग रहा है कि आपने सिर्फ बीड़ पंचायत का नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक मॉडल सेट किया है। नमस्कार जी। मैं सुरेश ठाकुर, प्रधान बीड, जो कि बीड बिलिंग पैरालाइडिंग के नाम से फेमस है। यहाँ पे जो वेस्ट की शुरुआत की गई है वो वेस्ट वॉरियर के मिलके हमने शुरुआत की है। इससे पहले भी हमने शुरुआत की थी महिला मंडलों के साथ मिलके, और बीच बीच में ऐसे कुछ अभियान जारी रखे। कई बार हमने जो उचित मूल्य की दुकान में जो डिपो से राशन मिलता है, जो भी उसके टेट्रा पैक दालों के या तेल के, तो एक बार हमने ये एक नोटिस निकाला डिपो में कि अगर जो भी उचित मूल्य दुकान से राशन लेता है वो पिछले 2-3 महीनों के 4-5 रैपर पैकेट वहां पे जमा करवाए, तब उनको नेक्स्ट जो है राशन दिया जाएगा।
तो उससे हमें भी काफ़ी मदद मिली। जो भी उस एक ड्रम में इकट्ठा होता था, वो उसको लेके हम पंचायत में ले आते हैं। उसके बाद बेस्ट वॉरियर के साथ मिलके हमने इस जर्नी को शुरू किया, लोगों को जागरूक किया। बीड़ पंचायत एक ऐसी पहली पंचायत है जिन्होंने यहाँ से शुरुआत की, वेस्ट बैंक दिया। अब तो बाकी पंचायतों ने भी इसके ऊपर काम करना शुरू किया। हमें अपने समुदाय के सहयोग से, नियमों के पालनों से, और कुछ एक हमने लोगों को फाइन भी किए, ताकि लोगों को पता चले कि जगह जगह कूड़ा कचरा ना फैलाएं। पंचायत कुछ एक अपनी सभानिधि से भी फंड इकट्ठा करती है, और कुछ एक फंड जो वेस्ट वॉरियर ने शुरुआत में लगवाए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वेस्ट वॉरियर की गाड़ी जो है गांव में घूमती है, जितना भी सूखा कचरा है लोग इकट्ठा करके देते हैं। पहले लोग जागरूक नहीं थे, लेकिन वेस्ट वॉरियर के साथ मिलके हम लोगों ने एक जागरूक अभियान रखा। जो भी लोग हमें कचरा देते हैं, अगर जो नहीं देते हैं उनकी लिस्ट हमें वेस्ट वॉरियर देता था कि ये लिस्ट है। उस लिस्ट को हम जो है ग्राम सभा में सभी के सामने पढ़ते हैं कि इन इन लोगों ने कचरा नहीं दिया, तो उनको थोड़ा सा इंसल्ट महसूस होता था, और उसके बाद उन्होंने पैसे देने शुरू किए और कचरा देना भी शुरू किया। वाह। आप देखते हैं कि जी, प्रधान होते हुए ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका वोटर बैंक डायरेक्टली अफेक्ट हो जाता है। तो बहुत मतलब क्वाइट नाइस मैं कहूँगी। पर मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि हमेशा से चीज़ें ऐसी नहीं थी ना। स्टार्टिंग में तो कुछ नोक-झोंक थी, मेरे को कुछ सुनने में आया है, कुछ विश्वास की कमी थी, कह लीजिए, है ना, दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा उस बारे में शेयर कर सकते हैं सबके साथ। विश्वास की क्या कमी बोल सकते हैं, थोड़ा सा समझने में मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो उसके बाद जब हमारे अभिषेक मुखाली जी साथ में आए, तो वो लोकल है, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। और उसके बाद तो हमने इतोषा मैम का भी, विशाल सर का भी, सबका धन्यवाद किया कि आपने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया। तो काफ़ी मुश्किलें सामने आई, लेकिन जो हमारा संदेह था वो बाद में एक विश्वास में बदल गया। तो बीड़ पहली पंचायत थी, उसके बाद बाकी पंचायतों ने भी शुरुआत की। तो काफ़ी बीच में रहा मैम, लेकिन फिर भी मिलके जो है लोगों को जागरूक किया। तो बीच में बेस्ट वॉरियर की टीम से दिया मैम, जब भी लोगों के घर घर जाके, महिलाओं के बीच में भी जाके उन्होंने जो लोगों को जागरूक किया, तो ये सारी टीम जो है एक बधाई के पात्र है बेस्ट वॉरियर। और साथ में हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे जो लोग गांव के लोग इन्होंने समझाया, तो लोग समझते हैं इनकी बातों को। जी, जी नहीं, बधाई के पात्र आप हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ये करना। हमें पता है, जब भी हम कोई नई लोकेशन, आप लोग मतलब बहुत सारे हमारे डोनर्स कहते हैं आप इधर क्यों नहीं काम करते, आप उधर क्यों नहीं काम करते। पर हम उनसे कहते हैं कि वहाँ की पहले गवर्नमेंट अगर अलाइंड होगी तो ही तो हम काम कर पाएंगे ना। तो आप उसके लिए एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं सुरेश जी, सो थैंक यू सो मच। एक बार हम वापस कोशिश करते हैं, अगर राज है यहाँ पर और अनम्यूट का इशू रिजॉल्व हो गया है तो। हाँ ख्वाहिश राज हमारे साथ है। ओवर टू अभिन्या एंड राज। हाय राज अंकल, आप आज कहाँ हो? मैं एमआरएफ में हूँ। मैं तो कभी भी नहीं एमआरएफ गई हूँ। आप थोड़ा दिखा सकते हो? हाँ जी, उल्टा करना है तो उल्टा करना, ये उल्टा करना, ठीक। तो ये हमारा एमआरएफ है, जो हमारा मेन गेट है ये इधर से है। तो सबसे पहले जैसे आप ये देख रहे होंगे, हमारे पास बेन स्केल है इधर, और इसका मीटर जैसे उधर है, उसमें नंबर पॉइंट आ रहे हैं इसके। तो ये हमारा जैसे जो भी एमसी से कचरा आता है, ऐसे बड़े बड़े बैग में आता है जो मिक्स ड्राई वेस्ट होता है। और ऐसे देख रहे होगे आप, इधर सेग्रीगेशन भी चल रही है। ये हमारे वॉरियर हैं, जो ग्रीन वर्कर हैं, जो सेग्रीगेशन कर रहे हैं इनकी।
ऐसे ऐसे बड़े बड़े बैग आते हैं हमारे एमसी से, 17 बैग पर डे, 18 बैग पर डे आते हैं, किसी किसी गाड़ी में 2 भी आ जाते हैं। ऐसे सेग्रीगेशन चल रही है। कुछ यहाँ पे बैठे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं, तो टाइम कम होने की वजह से मैं ये दिखा दे रहा इतना। बाकी हमारी उसके बाद एक प्रोसेसिंग ये है बेलिंग की, जिसमें अभी ये लगे हुए हैं, अभी आवाज के कारण इसलिए मशीन थोड़ी बंद कर रखी है। बाकी जो बेल होने के बाद और सेग्रीगेशन होने के बाद उसको हमारा एक स्टोरेज एरिया है, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे पेट बोतल की जो बेलिंग हमने ऐसे रखी है इसको, और उसके बाद ग्रीन बोतल है ये ऐसे है, फिर उसके बाद एलडी प्लास्टिक है जैसे हमारा ये है, और उसके बाद जैसे कि हमारा ये रफिया पीपी जो होती है, सीमेंट बैग वगैरह कोई भी बैग होते हैं वो होता है। इसके बाद ये हमारे जैसे ये मिल बोर्ड है, और ये एक हमारी मशीन है स्टेकर मशीन, और इनकी अभी बेलिंग होनी है, जैसे कि इस साइड में पड़े हैं जो कैरी बैग है, एलडी प्लास्टिक है, और ये क्लॉथ है हमारा जो कपड़े हैं जो हमारा मैक्सिमम मुरादाबाद जाता है यहाँ से। और उसके बाद हमारी इधर एमएलपी की बेल है, ये अभी लास्ट टाइम हमारा 2 दिन पहले ट्रक गया, तो इसलिए एमएलपी की सिर्फ 3 या 4 पेटी है। और उसके बाद हमारा ये कैरी बैग है इधर, ये बेल्ट है पूरा फॉर्म। और उसके बाद वो लास्ट में हमारा एक लो ग्रेड मटेरियल है जो सीमेंट प्लांट जाता है। हाँ, दो वहाँ दे देना, जो सीमेंट प्लांट जाता है। और बाहर भी हमारा इस साइड हमारा मैक्सिमम जो ग्लास होते हैं, ब्रोकन ग्लास या ऐसा ग्लास कुछ भी होता है तो वो बाहर ही रखते हैं हम लोग। तो ये हमारी एमआरएफ की वो है डिटेल। वाओ, आपका एमआरएफ बहुत ही मजेदार है, पर आप यहाँ तक कैसे रीच? यहाँ तक पहुँचने में मेरी जो जर्नी है तो उसकी बहुत एक लंबी स्टोरी है, मैं फिर भी शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी चाहूंगा कि ख़त्म करूं। मेरा एक फ्रेंड था जो चंडीगढ़ में था, और उसके एक मामा यहाँ पे जो पिछले 30 से 35 साल हो गए उनको रहते हुए, तो उनके पास मैं और मेरा फ्रेंड आए थे ऐसे काम करने। वो कबाड़ी वाले थे, यानी कि एक कबाड़ी वाला जो खरीदने वाले होते हैं वो थे। तो उनके पास हम लोग आए थे, तो वो उनके पास मैं जैसे कि उसके मामा के पास हम दोनों काम किए, कोई 4-5 साल तक कंटिन्यू काम किए, तो हमें उस चीज़ के बारे में थोड़ा नॉलेज हो गया था। फिर उसके बाद हमने अपना काम किया, जैसे कि ये होता है कि रोड से बोतल गिरी हो किसी की, या कहीं पे कुछ फेंका हो, तो हम लोग उसको उठा के उसको बेचते थे उसके मामा को ही। तो उसमें हमें पैसे थोड़े अच्छे ज़्यादा मिल जाते थे, तो उसमें कोई ड्यूटी टाइमिंग नहीं थी, तो हम लोग उस पर ज़्यादा काम करते थे। तो वहाँ से फिर उसके बाद हमें मिली जोड़ी जो कोई सन 2012 में, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो वो भी ऐसे ही इधर उधर क्लीन अप छोटे मोटे करती थी अकेले। तो हमें भी यानी कि हमारा और उसका काम एक ही था, बस ये कि वो नॉन साइकिल पे काम करती थी, हमारी बेल्लू पे काम करते थे। तो उसका और मेरा यानी कि बातचीत होती थी थोड़ी थोड़ी, किसी की यानी कि कोई ट्रांसलेटर कई बार मिल जाता था, नहीं तो हमने अपनी टूटी फूटी बोल के समझा देना, उसने अपनी इंग्लिश को टूटा फूटा बोल के हमें समझा देती थी, हम समझ लेते थे एक दूसरे की बात। तो वो बोलती हमारे साथ काम करोगे, मतलब ठीक है, हम क्यों नहीं करेंगे, आप हमारे लिए अच्छा करोगे तो हम भी आपके लिए काम करेंगे, अच्छा करेंगे। और उसके बाद फिर हमने जोड़ी के साथ काम किया, और हमने जैसे त्रियुण का क्लीन अप किया, गल्लू का क्लीन अप किया, वाटरफॉल क्लीन अप किया, लोगों के नदी नाले जो होते घर के आसपास पॉइंट कोई भी घर के पास होता फेंक देता, हमने उसको क्लीन अप में काफ़ी यानी कि साफ सुथरा किया। उसमें से जो हमारे को हाई वैल्यू निकलता था, हम उसको बेच के और अपने ज़रूरतों को यानी जैसे पूरा करते थे। जैसे हमने एक स्टोरेज लिया था, एक छोटा सा ऑफिस लिया था, पहले हमने तरपाल डाल के उसके ऊपर यानी कि बैम्बू लगा के तरपाल डाल के उसका एक छोटा सा हमने स्टोर बनाया, उसके बाद एक ऑफिस भी बनाया। फिर वहाँ पे हम लोग सेग्रीगेशन करते थे और हाई वैल्यू बेचते थे, और जो एमएलपी मिलबोर्ड क्लॉथ या कैरी बैग कुछ ऐसा होता था, हम सेग्रीगेट तो कर लेते थे, लेकिन उसका कोई मंजिल नहीं थी, उससे हमने भेजना कहाँ है, हमारे पास रास्ता नहीं था, लेकिन दिमाग था कि हाँ ये चीजें अलग करनी है। आपने ले कौन सी जॉब्स की है इस स्टोरी में? इस स्टोरी में मैंने जैसे कि पहले रोड पे कबाड़ बिनने वाला जो था एक वो था, उसके बाद एक ग्रीन वर्कर वेस्ट बोरियर में एम्प्लॉय था, फिर उसके बाद सुपरवाइजर था सेग्रीगेशन सेंटर जो हमारा धर्मशाला रक्कड़ में है, फिर उसके बाद वहाँ से एमआरएफ का सुपरवाइजर रहा कोई एक 1.5 साल,
फिर उसके बाद अब एली, लास्ट 2 साल से मैं एली के तौर पे काम कर रहा हूँ, लोकल एक ओपनर के तौर पे। Wow. By the way, everyone, happy birthday to Jody. हाँ जी, आज जोड़ी का बर्थडे भी है। इस जर्नी में आपका नजरिया या पर्सपेक्टिव कैसे बदला? इस जर्नी में जैसे कि अब मैं तो पहले मैक्सिमम ज्यादातर हाई वैल्यू पे काम किया था। मैंने आपको बताया था कि अभी कि हम लोग सेग्रीगेट करते थे, लेकिन हम लोग उसको सही उसके ठिकाने तक पहुंचा नहीं पाते थे। जैसे एमएलपी, कैरी बैग, क्लॉथ कैरी बैग, ये सब हम सिर्फ सेग्रीगेशन करते थे, लेकिन लास्ट में हमारे पास ऑप्शन ना होने के और स्टोरेज हमारा छोटी होने की वजह से हम उसको डंप साइड में ही ले जाके फेंकना पड़ता था। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था, जैसे सेग्रीगेशन सेंटर हमने लिया, हमारे पास स्टोर का इश्यू नहीं था वहां पे, क्योंकि हम लोग उसको साल भी रख सकते थे, हमारे पास इतनी जगह थी, 2 साल भी रख सकते थे। तो हमने उसको वहां पे स्टॉप किया और उसके बाद हमने धीरे धीरे मार्केट में पूछा ये चीजें कैसे बिकेंगी, कहाँ बिकेगी, लोगों से मदद ली और हमें रास्ता मिला। और आज हम उसको उसकी सही जगह पे भेज रहे हैं और अच्छे पैसे उसमें से कमा भी रहे हैं। यानी कि जैसे कि क्लोथ हो गया, पहले क्लोथ हम नहीं बेच पाते थे, लेकिन हमें वेंडर मिल गए, अब वो यहीं से हमारे यहाँ से लेके जाते हैं। वाह राज अंकल, आपका स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपका MRF बहुत ही बड़ा है। आप ये फ्यूचर में कैसे ग्रो करोगे? फ्यूचर में अभी तो मैक्सिमम हमारा जो है यहाँ पे टीचर यानी कि ठीक चला है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको और बड़ा करें और इसमें यानी कि और भी, जैसे कि धर्मशाला में पर डे 30 टन मैक्सिमम कचरा जो मिक्स ड्राई वेस्ट निकलता है, उसमें से अभी हमारे पास सिर्फ 3 या 2.5 टन आता है पर डे। तो हम चाहते हैं कि जो डंप में बाकी कचरा जा रहा है उसमें से थोड़ा और यानी कि 1 या 2 टन या 3 टन हमारे पास और आ जाए, तो हम उसको भी यानी कि सेग्रीगेशन करके उसको रिसाइकलिंग प्लांट और उसकी उसकी सही जगह पे उसको भेज सके और उसमें से हम थोड़ा और मुनाफा कमा सके। और इसमें जैसे ट्रेडिंग भी, हमारी ट्रेडिंग भी हम और ज़्यादा बढ़ाएं। और जो हमारे मेरे पास जो 15 लोग काम कर रहे हैं, ग्रीन वर्कर्स, मेरे सुपरवाइजर या अकाउंटेंट, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे और भी लोगों आगे बढ़े इस चीज़ में। वाह राज अंकल, आपका तो पूरा फ्यूचर प्लान रेडी है। आपको तो कुछ करना भी नहीं है अब। थैंक यू राज अंकल, आपने कितने सारे जॉब्स किए और आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। ओवर टू यू खान। And what really makes all of it really possible? Waste management system setup करना, लोगों को अवेयर करवाना, लार्जेस्ट माउंटेन क्लीन अप करना जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, या एक टूटे हुए वेस्ट बैंक को जो बहुत ही ज्यादा पहाड़ी इलाके में है उसको कैसे हम रीबिल्ड करते हैं, ये सब आप सबके कंट्रीब्यूशन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। आप आज एक वर्किंग डे पे, एक वेंसडे को 3 बजे राइट आफ्टर लंच अगर आपने समय निकाला है, तो ये भी आपका एक कंट्रीब्यूशन है, आपका दान है। एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो इसी गिविंग स्पिरिट को थोड़ा अगर हम और एक्सप्लोर करें तो मे बी वी कैन हैव शिफाली, इफ यू देयर। हाय शिफाली। Hi, Kwash. Abhinya, over to you. So, hi Shivali auntie, what was your first donation like? Thanks, Abhinya. Firstly, congratulations to Waste Warriors and all the supporters on Warriors Day. So, Abhinya, बहुत साल पहले मेरी भी जर्नी काफ़ी लोगों की तरह धार्मिक कामों के लिए दान देने में शुरू हुई थी। ऑफ कोर्स घर में स्टाफ की मदद करना भी एक दान ही सब लोग समझते हैं, लेकिन आई थिंक 2017 में जब मेरी बेटी गिव इंडिया पर छोटे छोटे अमाउंट्स डोनेट करे, लेकिन सचमुच का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था कि वो डोनेशन के बाद मैं भूल जाती थी। मेरी एक क्लोज फ्रेंड यहाँ गुड़गांव में वेस्ट मैनेजमेंट की एक एनजीओ चलाती हैं, उनका सपोर्ट किया। और फिर हाल ही में जब सोशल वेंचर पार्टनर्स जो एक फिलैंथ्रोपी प्लेटफॉर्म है, उनकी तरफ से जब वेस्ट वॉरियर से मुलाकात हुई, तब जाके देखा, जब वेस्ट वॉरियर्स टीम से बहुत डिटेल में बात हुई, तब देखा कि वेस्ट मैनेजमेंट जो सबसे मुश्किल काम है, जो है पहाड़ी कचरा, वो वेस्ट वॉरियर्स कैसे जटिल और जैसे ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर आपने क्लीनअप्स के लिए डोनेशन दिया है कहीं भी, तो समझिए कि बैंडेड है, वो बैंडेड भी ज़रूरी है।
पर पहाड़ी वेस्ट का पूरा सिस्टम को समाज को ढंग से समझकर उसका सर्जिकल ऑपरेशन करना, जो टिकाऊ या सस्टेनेबल समाधान बने, उसमें आई थिंक वेस्ट वॉरियर्स का जो तरीका है उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई। तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रहा कि पहाड़ों की सफाई किसका जिम्मा है? जो वहाँ रहते हैं, जो वहाँ सैर करने आते हैं। और ये मैंने वेस्ट वॉरियर्स से फिर समझा कि ये कैसे सब जो स्टेक होल्डर्स को दिमाग में रख के चलते हैं, जो जो रहते हैं, जो वहाँ टूरिस्ट सैर करने आते हैं, उनका क्या रोल है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का क्या क्या रोल है, वो कंपनीज और व्यापारी जो वेस्ट की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट पैकेजिंग, तो बदलना तो पूरे सिस्टम को ही है। तो yes, so in each one of us, Panda Pure is really, I think, a lighthouse of change. I think there is there I can hear on audio. तो ये फिर दिमाग ये है जहाँ समाज, सरकार और बाजार, विच इज जब कंपनीज एकत्र होकर जब काम करती हैं, इसका ये जो है ये एक एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से वेस्ट वॉरियर्स। तो एक बार आप क्लीन अप करेंगे तो कितने दिन रहेगा, फिर लोग आएंगे कूड़ा करेंगे, लेकिन असली चेंज के लिए ये दिमाग, मेहनत और टाइम दूसरे लेवल का चाहिए। जैसे काम जो पर्यावरण सखी कर रही हैं, जो मुक्ता जी ने बताया, ये बिलीफ, ये सिस्टम, ये एक जैसे कह रहे हैं ना, वो बिहेवियर चेंज कर रहे हैं। या जब अश्विन जी ने कहा कि दुनिया का को जस्ट 1% काम दिखता है, तो वेस्ट वॉरियर्स काफ़ी लेवल्स पे काम कर रहे हैं। राज ने MRF की व्यवस्था दिखाई है, सुकेश। सो एनीवे आई कैन गो ऑन, बट प्लीज कैरी ऑन। तो this is what I would say has been the journey so far. Thank you, Shefali. Now it's time for revenge time. All my teachers pick on me randomly. Now it's my turn to take revenge. अब मेरी बारी है, मैं रिवेंज लूंगी। मेरी टीचर्स रैंडमली मेरे को पिक करती हूँ और अब मैं आपको करूंगी। So, Aditi, are you out there? Okay, let's try someone else. Ahana, are you out there? Okay, let's try. Yeah. Okay. So can you tell me about the mission? Okay, wait. Hello, So, hi Abhinna. This is hi. Aditi. You picked me. I'm here only. Yeah, can you tell me about your first donation? Sorry, your voice was not clear. Can you repeat it again? What first donation? आदिति, देयर इज एन एको फ्रॉम योर एंड। अगर दूसरे डिवाइस पे आप हैं तो आप वहां से बंद कर सकते हैं। और मे बी वी कैन मूव टू समबडी एल्स। या अभिनव, would you like to pick anybody else? Maybe somebody who has their videos on. Yeah. One sec. So, Vishal, what was your first donation like? Thank you so much. I don't remember my first donation exactly, but I think initially it used to be when friends and family would reach out, for somebody's health emergency. I think that was just a easy thing, didn't have to think much. It came from a trusted source. But after that, I think there's two things I'd like to share. I think one is every time, I have to gift somebody anything for their, wedding or for their birthday, I always try to now give social gifts instead of, buying something physical. So I plant trees on their behalf and I send them the certificate of the trees so they can track it. There's, kind of blockchain technology through which they can actually track
the growth of that tree, and they will know exactly where it is planted. So that's something that I've started doing over the last couple of years. And also, anytime I come across uh, any organization that's asking for donation, that reach out to me. If I find their content credible, and if I find the reference, the person who has sent it to me, credible, I will try to make a small contribution at least. Even if it's just 500 rupees or something like, or whatever amount it is. But I think the idea is when you make that even the smallest of contribution, uh, you have no idea how much it can boost somebody's morale. Because when we receive donation, one part is the money, right? How much money we raised, but the other part for us is how many people contributed to us, because the number of people is the backbone of the support that we can rely on during difficult times. So for me, anybody who reaches out and I find them credible, I try to do a small contribution as much as I can. Thank you so much. Wow, that gift idea is amazing. Would you mind sharing me the link? I really want to try that out. Anyway, moving on. So, Raji, are you there? So, Niti Nanda ji, are you there? That's right. Yes, Avinya, I'm here. Could you tell I couldn't hear what you asked. can you tell me about your first donation? Okay, I actually don't remember. As Desha was saying, I don't remember what is my first donation, but generally, like a lot of donations comes related to two things: health, and the other one is education. And at my end, also, I always try to prioritize education a lot, wherever possible. And sometimes I try to help number of kids who can, like, let's say, study for a few years, kind of a thing. So that is very, like, close to my heart. There is another thing that I have started donating to is, after meeting Vishal, actually, environment has become a cause which I was never aware of earlier. So I heard Vishal and I heard about Waste Warrior in one of our leadership sessions in ILSS. Vishal, if you remember, one of the sessions you had taken, and that's how I got to know about Waste Warrior. And after that, I remember one thing, that I keep talking about Waste Warrior a lot, even to kids, students, to understand how environment and all this stuff work. And also, for a lot of social entrepreneur to see how you can look at this as an opportunity also. So, one of the hat that I wear a lot is as a mentor coach, to let people know this kind of a sector. And of course, as a donor, I do my small bit of donation wherever I feel more connected with. So these are 3-4 areas that I really feel connected, and that's how I do my part of the donation. For Waste Warrior also, I think when I heard about the record that you guys had done, when I read about it, that's something I think probably the first time I might have donated to Waste Warrior cause. And it feels very good to see the kind of work that you guys are doing. And somewhere I feel that if Waste Warrior can come and teach the model to a lot of other states, I mean, it's not just the mountains. Even when you look at our cities are struggling. Even a small area, if they can learn about the model that you guys have done, I strongly feel, I have taken so many notes today in the session, that there are the small things that can be taken and learned. I think that's a wonderful idea, and students or anybody my age should really know about Waste Warriors, and Waste Warriors is 100% a completely inspiring organization. So let's do one last person, if that's okay. Yeah, maybe we can volunteer if somebody is there. Yeah. In the interest of time, let's just Shefali Ray. Yes, ma'am. Keep it short, क्योंकि हमें इसके बाद question and answers के लिए हम move करेंगे, है ना? You're on mute.
Hello, I'm Shafali Ray, and I heard about Waste Warriors about a couple of years back, and not couple of years, maybe 5 years back, and then we did a cleanup campaign in our area. I live in Uttarakhand, and where there's a hilly area, it's towards a forest. And if you looked at the forest, it appeared to be fine. It's a winding road, there's a river, but there were just a few bits of, you could see paper or plastic. But when we started doing the campaign with Waste Warriors and we got a lot of support from them, you wouldn't believe within an hour and a half, we had collected about 100 kg of waste. And that is a huge amount. Now, the question is, we do make efforts like that. We can mobilize the community, but we need to change the mindset, because in another couple of months' time, the situation, we were back to square one. And we thought we need to have another cleanup campaign. And I think I must appreciate what Waste Warriors is doing, because there is a lot of education as well. I also am into plantation. My Punah Aranya, we have planted about 1,800 trees in and around Dehradun, and Waste Warriors have supported us. And we do workshops for children on Earth Day and during World Wildlife Week. And Waste Warriors have come and done educational program for school children. So I Yeah. have a question which I posted quickly. I will finish that. We pollute our rivers, and how we pollute them? One, the concept that clothes should not be, a child's clothes should not be given away. You put them in the water and in the river. Number two, after your puja, all that samagri and whatever that is, we put it in the river. But we never thought, where does it go? Where does it get stuck? And how does it clog a river? I think we need to address that. And I'm an educationist. I'm an author for Oxford University Press. I write books for children, and I've been a teacher educator. We need to educate children right from their childhood to be clean, to have habits where waste is disposed of very responsibly. And Yes. regarding donation, I was very happy to donate a little bit to Waste Warriors. I do donate to the Wildlife SOS, and of course, education of children as well. Hats off to you, Waste Warriors. I continue to be with you. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, दैट वाज रियली स्वीट ऑफ यू। आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि शायद मतलब हम क्लीन अप आज करते हैं और फिर कल वहीं पर शायद कूड़ा वापस आ जाएगा, पर हमें Right. चेंज की तरफ जाना है, राइट? एंड विच इज वाई आई थिंक जो अभी यहाँ पर आई थिंक लगभग 270 लोग मैं कहूंगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो वो सब लोग सिस्टम्स चेंज में बिलीव करते हैं, विच इज अ ह्यूज विन फॉर अस, बिकॉज वी स्टार्टेड विद वन जोडी, वन ताशी एंड वन मीनाक्षी, राइट? आज से 13 साल पहले. And so we have, as we move on to the end of this, Abhinya, would you like to tell us what time is it now? Time to check your inbox. Because we've sent you something really cool. It's a Warrior Lens booklet, जिसमें हम यही स्टोरीज और शेयर करते हैं. बहुत छोटी सी पतली सी किताब है वो, तो आपके इनबॉक्स में वो अभी आ गई होगी. प्लीज उसको पढ़िए और हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर करिए, क्योंकि शायद एक बिल्डिंग बनाई जा सकती है, पर एक इंसान को बनाना, उसके कर्मों को बनाना, हम वो काम कर रहे हैं. सो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड नाउ वी कैन मूव टू सम क्वेश्चंस. अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, प्लीज उनको क्रिस्प रखें, संक्षिप्त रखें, कि हम सिर्फ सवाल पूछें, या फिर हम चैट में डाल सकते हैं, जो भी है. Okay, Vishal, yes, you have a question. थैंक यू। मेरा सवाल सुरेश जी के लिए है। उन्होंने एक अपने जवाब में जब शुरू किया था उन्होंने, तो बहुत ही संक्षिप्त में बताया था। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर खुल के बता सकते हैं सारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि आज सिर्फ वेस्ट वॉरियर्स की टीम नहीं है, और भी लोग हैं यहाँ पे, और दूसरी संस्था में जो लोग दूसरी वेस्ट की संस्था चलाते हैं वो लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो सुरेश जी, अगर आप ये जवाब दे सकते हैं कि
एनजीओ के प्रति आपके क्या विचार थे वेस्ट वॉरियर के पहले, जुड़ने से पहले? आपको क्या लगता था कि जब एनजीओ आता है काम करने के लिए तो किस तरीके की सोच के साथ होता है? और जो आपने बोला था कि थोड़ा सा तालमेल नहीं था शुरू में, तो उसके क्या कारण है आपको लगता है, ताकि फिर और लोगों को भी ये चीज समझ आ पाए कि क्योंकि जब शुरू में अगर तालमेल नहीं बैठा तो इसका ये मतलब नहीं कि आगे चल के तालमेल नहीं बैठ सकता है। तो ये थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं। सर नमस्कार आपको। आप ठीक बोल रहे हैं, पहले हमारा कुछ तालमेल ठीक नहीं था। लोगों को ऐसा लगता है कि एनजीओ जब कुछ लेके आ रहे हैं तो कुछ फंडिंग के प्रति इशू हो जाता है, लेकिन जब बाद में आप लोगों ने काम करना शुरू किया तो आपने बहुत ज़्यादा फंडिंग लगाई। तो इसलिए जो आपकी वेस्ट एनजीओ है वो जिसको बोलते हैं काबिल तारीफ है। आपने सचमुच बहुत ही अच्छा काम किया है और हम ये भी चाहते हैं कि आप आगे इस तरीके से इन चारों पंचायतों इस एरिए में काम करते रहें, ताकि और ज़्यादा जो यहाँ पे क्लीन अप और जो जागरूक जितनी भी प्रकार की जो भी समस्या होंगी वो एक एनजीओ काफ़ी दूर कर सकता है। एनजीओ का रोल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्रिया। Yeah, Mahesh, Does anybody have any other questions? Yeah, I have a question. Yeah, go ahead. या मेरा प्रश्न मैं हिंदी में ही पूछती हूँ कि वेस्ट वॉरियर्स आप लोग ने कभी मतलब ये कभी अपने प्लान में आया होगा ज़रूर कि जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, जो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ अगर मिलके गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में वी कैन टारगेट सबसे ज़्यादा, अब तब इफ़ेक्ट हमें दिखाई देगा। एजुकेटेड फैमिलीज में और पब्लिक स्कूल्स में तो हो सकता है। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके कुछ किया जाए? Yes, ma'am. I think we're already working with a lot of schools in Dehradun. हमारी एक युवा करके एक मूवमेंट है, यूथ यूनाइटेड फॉर हम्म क्लाइमेट एक्शन। तो उसके अंदर हम देहरादून, इवन ऋषिकेश और मसूरी तक लेकर जाकर हम काफी स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों। हम्म इवन कॉलेजेस के साथ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि देहरादून एक एजुकेशनल हब हम बोलते हैं, राइट? हम्म अगर आपको लगता है, आई थिंक अगेन टेक्स्ट बुक्स में काफी चेंज आया है पहले से लेकर अब तक, बट अगर आपको लगता है कि हमें इसमें और काम करना चाहिए तो आप ऑफिस आइए एक दिन और हम इस पे साथ में बैठ के चर्चा करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और आई थिंक एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस फॉर द पैनलिस्ट, नॉट फॉर वेस्ट वॉरियर्स। हम तो सारा टाइम रीचेबल रहते हैं, पर राज, मुक्ता जी, शिफाली, सुरेश ठाकुर जी, तो इनसे अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं। Surprise, Krish, I have a question. So So I have a question for Raj Uncle. It's not really a question, it's like an idea kind of a thing. So have you ever thought of doing like tours in your MRF for schools where they can, like understand the importance of waste and what happens after they throw waste in the dustbin? How does it go after that? Because it's easy for us to just throw waste, but it's not easy for others who actually work in the field of waste and segregate waste. So yeah, are you there, Raj Uncle? Hi, Abhinya. Maybe Raj has just dropped off, so Oh, okay. yeah. A few seconds late. बट आई थिंक या वी डू होस्ट अ लॉट ऑफ, मतलब काफी स्पेशली जैसे टूरिस्ट से भी टूर्स हम टूरिस्ट के लिए भी हम टूर्स करवाते हैं राज जी के एमआरएफ में। तो वहीं पर वो खुद एमआरएफ में टूर्स कई बार लीड करते हैं।
आई थिंक जैसे कुछ कैलगरी यूनिवर्सिटी से लास्ट ईयर लोग आए थे, तो नॉट जस्ट इंडियन बट इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर कमिंग एंड विजिटिंग दिस मॉडल. Tell Raj uncle I'm on my way there. Noted. Cool. Ashwin had a question. Yeah, my question was, I kind of see the work that is being done, and because हम वेस्ट वॉरियर के साथ काफी देर से हूँ, तो जैसे आई हर्ड मुक्ता जी, शेफाली जी, हम कितने और लोग हैं, कैन वी, और इज देयर अ प्लेस, और कैन वी हैव समथिंग लाइक अ फ्रेंड्स ऑफ वेस्ट वॉरियर्स कम्युनिटी, चाहे ऑनलाइन कुछ प्रेजेंस हो, जहां पर ऑनलाइन महीने में या 2-3 महीने में एक बार, जो नॉट डायरेक्टली वॉरियर्स हैं बट फ्रेंड्स ऑफ वेस्ट वॉरियर्स मिल रहे हैं, तो वो फिर आइडियाज या वो कनेक्ट करें लोगों को, फिर और लोगों को लाएं, हाउ वी कुड सपोर्ट मोर. सो आई एम जस्ट थिंकिंग, ऐसा कुछ, इज देयर समथिंग इन प्लेस, और कैन वी हैव समथिंग इन प्लेस जहां पर अलग अलग लोकेशंस के फ्रेंड्स ऑफ, जैसे एलुमनी होते हैं, एक फ्रेंड्स ऑफ वॉरियर्स का हो जाए. इज दिस समथिंग देयर दैट आई कुड, या अगर लोग ही बताएं तो अच्छा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम जरूर इसको इनिशिएट करेंगे. मे बी जो लोग भी कॉल पे जुड़े हैं, आई थिंक अगर आपको लगता है कि हम लोकल लेवल पर ऐसे कुछ ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं. हमने हाल ही में गुड़गांव में एक छोटा सा मीटअप किया था, पर उसमें जैसे 5-7 लोग आए, पर हमने बहुत अच्छी बातें करी. ऐसा लग रहा था वो लोग हमारी पीपीटी से ही देखकर बोल रहे हैं. तो बहुत ज्यादा मतलब बिकॉज हम यहाँ पहाड़ों में कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग जो आपकी सेम भाषा बोले ना, सस्टेनेबिलिटी की या कूड़े की, कचरे की. तो जब हम ऐसे और लोगों से मिलते हैं तो हमारा मोराल काफी बूस्ट होता है. In तो fact, अगर ख्वाहिश, I just want to add one thing. अगर आप पहाड़ों में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो आप कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में वेस्ट की प्रॉब्लम इज एवरीवेयर, राइट? सो I think if you set a great model, it can be replicated and that will be great. Yeah. Yes. of course. तो sure, I think Ashwin, we've received some hearts and some thumbs ups. तो I think as a next step to this webinar, हमें communities बनानी पड़ेंगी yeah. अब ढेर. Yes. And happy to count me in as the first volunteer if anything needs to be done for that. Thank you. Yeah. नोएडा, Thank right? you. नोएडा में done. Anybody has any other questions or comments? Anup has a question on the chat. राइट, आई थिंक अनूप जी ने पूछा है शेफाली से कि जब आप, मतलब आपके पहले फर्स्ट फ्यू थॉट्स क्या थे जब आपने वेस्ट वॉरियर्स के बारे में सुना, या वो लाइक व्हाट वाज, वर देयर एनी हेजिटेशंस प्रोबेबली? नो, एक्चुअली जब मैं टीम से मिली तो मेरे सबसे पहला ये आश्चर्य था कि इतनी यंग एनर्जेटिक टीम इस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं. तो मेरे को काफी, मतलब टीम से मिलके मेरे को बहुत एक्साइटमेंट लगा. दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन, वाज अ टीम. इनफैक्ट मुझे बहुत क्लियरली याद है, विशाल एंड आई थिंक 1 or 2 मोर मेंबर्स इन हिज टीम, वो अपना जब बैग खोल रहे थे, बैग में उन्होंने अपना सब पिछले 3 दिन का कचरा इकट्ठा किया हुआ था. And I was very intrigued. And I say, so he says, wherever we go, we carry our waste, and then this is our principle. So that was my, I can remember that. अनूप जी, आपका सवाल आई होप आंसर हुआ होगा. ओके, कूल. आई थिंक we're done for the day then, well on time. थैंक यू सो मच. आप सबने हमें आज एक पूरा घंटा निकाला है, तो बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए. थैंक यू सो मच एंड विल स्टे इन टच. Bye bye. Thank you. बाय. Thank you, everybody. Thank you to Abhinya. I'm sure everybody wants to tell thank you, Abhinya. You did an amazing job. And on Yes, behalf, I don't know a whoever, great but anchor. Thank you, Abhinya. yeah, Thank you so much. and to Bye, all Abhinya. the panelists, thank you. Thank you. Bye bye.